Hi everyone, I am Firdos Sheikh and welcome to you all in FCC. This is our fourth lecture and the topic Evidences of Evolution. Let's we start now. Firstly, evidences or what is the meaning of evidences? Evidences is a proof. Evidences का meaning होता है it's a proof. So see here collective thinking about upon all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. We know that in previous lecture we see about the evolution and the definition of evolution और evolution के बारे में हमने देखा है कि evolution क्या है? It's a changes, everlasting changes. So however it needs proof to prove it. और इसको proof करने के लिए जो proof है इसको prove करने के लिए क्या की जरूरत होती है? proof की जरूरत होती है. That's a evidences. और इसी को क्या बोला गया है? evidences बोला गया है कि कोई भी theory को prove करने के लिए एक proof लगता है. That's a evidences it means proof. Then following are various proofs available in support of theories mention above. यहाँ पे कुछ proof दिए हुए. There are 6 proof or evidences here. First one is morphological evidences. Second, anatomical evidences. Third, vestigial organ. Fourth, paleontological evidences. Fifth one, connective links, and sixth is the embryological evidence. So we see these evidences one by one. First we see about the first evidences like a morphological evidence. So next we see this is a morphological evidences and firstly observe the following images and note the similarities between given animal images and plant images. हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. दिस इज द एनिमल इमेजेस एंड दिस इज द प्लांट इमेजेस. इसमें कौन सी सिमिलैरिटीज हमको दिखे दैट्स ऑब्जर्व करना है हमको. सो वी सी दैट हियर वी कैन से द पोजीशन ऑफ माउथ, आईज, नॉस्ट्रिल्स, ईयर पिन्ना. जैसे यहाँ पे माउथ की पोजीशन देखिए, आईज की पोजीशन देखिए, ईयर पिन्ना देखिए, माउथ की पोजीशन देखिए. ऐसा लग रहा है ये जो पोजीशन है एनिमल्स में ये क्या है? सभी सेम है. नेक्स्ट सी हियर in plant, see the here leaf or venations. In that we know there are two types of venation, reticulate venation and the parallel venation. So next we see the detailed knowledge about various similarities like structure of mouth का structure देखिए, position eyes, position of eyes, structure of nostrils and ear pinning and thickly distributed hair on body are seen in the animals. हमको यहाँ पे एनिमल्स से जो हमने प्रीवियस जो स्लाइड देखिए इसमें आप देख रहे हो कि सिमिलैरिटीज कौन सी दिखाई दे रही है. यहाँ पे पोजीशन ऑफ माउथ, आईज and the ear pinna and the shape or structure of hairs present on the animals, that is the similarity. Next one we see the similarities between the plants, whereas similarities in characters like leaf shape. कौन सी similarities दिख रही है यहाँ पे plants में? leaf shape है, leaf venation, leaf petiole etc. that's occur in case of plant. ये सब हमको plants में दिखाई दे रहा है. Next we see this indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have a common ancestor. इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इनकी ओरिजिन जो है क्या है? सेम है. मतलब इनका जो पोजीशन है, स्ट्रक्चर है, सेम है. इससे प्रूफ किया जा रहा है कि इनकी जो ओरिजिन हो कैसे सेम है एंड दैट्स बिलोंग टू कॉमन एंसेस्टर. इनका एंसेस्टर भी क्या है? कॉमन है. दैट्स अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. ये प्रूफ है. मॉर्फोलॉजी हमको पता है कि जो हमको अपीयर होता है, हम जो उसको देख सकते हैं. Next one is a second evidence, that's anatomical evidences. So see here, observe these images. First one is a human hand, second cat's foreleg, third patagium of bat, and fourth one is a flipper of whale. That's the 4 images here. Next we see, if you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper whale and patagium of bat. Similar use of each of those structures
इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसे आप देखोगे अपीयरेंस पे से तो हमको ऐसे लगेंगे कि दैट्स डिफरेंट, इसमें सिमिलैरिटीज हमको दिखाई नहीं देंगी। बट अब देखिए आगे, हाउ वेयर देयर इज अ सिमिलैरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोस एनिमल। बट आप इसके बोन्स का जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो बोनी जॉइंट्स है इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसमें सिमिलैरिटीज दिखेंगी। दैट्स अ बोनी जॉइंट। देखिए ये बोन हो गया और ये जो है ये बोनी जॉइंट है, दिस इज बोनी जॉइंट। ये जो ये है जॉइंट्स है, बोनी जॉइंट्स है, इसमें हमको क्या दिख रही है, इसमें सिमिलैरिटीज दिख रही है कि क्या है बोन्स का स्ट्रक्चर और बोनी जॉइंट्स ये क्या है इसमें सिमिलर है, सिमिलैरिटीज है इसमें। So this similarity indicate that those animals may have common ancestor। और ये सिमिलैरिटी से ये प्रूफ किया जाता है कि ये जो एनिमल्स है ये सभी क्या है एक कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं। सो दिस इज अ एनाटॉमिकल एविडेंस। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भले ही इसके यूजेस अलग अलग है, जैसे इसके यूज अलग है, हैंड का यूज अलग है, कैट में 4 लेग का यूज अलग है, पैटेजियम में पैटेजियम ऑफ बैट है, जो बैट की पैटेजियम उसका यूज अलग है, और फ्लिपर जो है वेल की उसका यूज अलग है। सो यूजेस अलग अलग है, बस इनका जो बोन का स्ट्रक्चर है और बोनी जॉइंट्स जो है इसमें क्या है कुछ सिमिलैरिटीज है एंड डिपेंड्स ऑन दैट द इसको प्रूव किया जाता है कि ये सभी जो एनिमल्स है ये क्या है एक कॉमन एंसेस्टर से आए हुए। सो दिस इज अ एनाटॉमिकल एविडेंस। नेक्स्ट वी सी द हियर थर्ड वन इज वेस्टिजियल ऑर्गन। हमने इसके पहले भी लेक्चर में वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पढ़ा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स को लेकर। सो उसमें हमने ये देखा था वेस्टिजियल ऑर्गन। सो देखिए अभी फिर से हम देख लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। सी हियर डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन, इसको क्या बोला गया है यूजलेस ऑर्गन, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है वो यूजलेस होता है, ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। और इसी को क्या बोला गया है वेस्टिजियल ऑर्गन बोला गया है। मतलब ऐसा ऑर्गन जो अंडर डेवलप है यूजलेस है ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन बोला है। दैट डू नॉट हैव देयर मेन फंक्शन, जैसे हमारे बॉडी में बाकी ऑर्गन से उनके सबके पर्टिकुलर फंक्शन है, और वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा है वो तो प्रेजेंट होता है बॉडी में बट दे डू नॉट हैव एनी फंक्शन, बस वो प्रेजेंट ही होता है, उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, वर्क नहीं होता है। सो यहाँ पे देखिए हमको पहले फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा है कि अपेंडिक्स, हमने अपेंडिक्स के बारे में पहले भी देखा था। अपेंडिक्स इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट्स द अपेंडिक्स। एंड अपेंडिक्स डोंट हैव एनी main function of body but in our ancestor appendix is active। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उसमें अपेंडिक्स क्या था एक्टिव था, बट इवोल्यूशन है बहुत चेंजेस आ गया, अब हमारी जनरेशन है तो हमारी जनरेशन में ये जो ऑर्गन है अपेंडिक्स जो है वो इनएक्टिव है, यूजलेस है, इसका कोई भी यूज नहीं है। सो दैट्स अ ऐसा ऑर्गन जो अंडर डेवलप है, उसकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है, यूजलेस है, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है, दैट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट वी सी हियर द ईयर मसल्स। अब देखिए हमको पता है ये ईयर है हमारे, जो हम इससे ईयर करते हैं सुनने में ये हमको हेल्प करता है, बट ये जो मसल्स है इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट ये जो मसल्स है इसका यूज कुछ भी नहीं है, मतलब दैट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट सी द विजडम टीथ। विजडम टीथ के बारे में हमने पहले पढ़ा है। विजडम टीथ मतलब ऐसे जो यूजलेस है, मतलब जिसका यूज नहीं होता है। हमारे अभी जो हमारी जनरेशन है उसमें विजडम टीथ का कोई भी यूज नहीं है, दैट्स यूजलेस, बट इन आवर एंसेस्टर इट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि हमको पता है हमारे जो एंसेस्टर थे उनका फूड क्या था, इट्स इन फूड इज हार्श मटेरियल, रॉ मीट, रूट्स, ऐसे सब चीज़ों को क्या करते थे खाते थे, तो उनको अचीविंग के लिए विजडम टीथ यूजफुल रहते थे। बट इन अवर जनरेशन विजडम टीथ का कोई भी यूज नहीं है, इट्स अ यूजलेस है। सो दैट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब डायरेक्टली बोला गया है कि मतलब जो ऐसे ऑर्गन जिसका कोई भी हमारे बॉडी में मेन फंक्शन नहीं है, कोई भी यूज नहीं है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोला गया है। सो दिस इज अवर थर्ड
evidence, that's a vestigial organ. And fourth, fifth, sixth, that's the fourth is paleontological evidence, six connective links, and the fourth is paleontological, fifth is connecting link, and sixth is embryological evidence that to see in our next upcoming video. So if you like my video, so please subscribe to my channel. Okay guys, thanks for watching.